Assalamualaikum students of class 6. Today is our lecture number 2 from the chapter number 1, sources of food. In the previous lecture I have given you the syllabus for midterm. Then I gave you the introduction of chapter number 1 and we studied in detail about the living groups made on the basis of driving nutrition. The groups were: number 1, producers; number 2, consumers; number 3, decomposers; or they are also known as saprophytes. Then fourth group is parasite. We discussed about producers, consumers, I told you the groups about producers, consumers, decomposers, or saprophytes and parasite. In this from these 4 groups, we have discussed the first 2 groups in detail, producers and consumers. I would like to recall few points about producers and consumers. Then we will proceed towards the further groups. Producer is that group in which the living things depend upon the the producer is that group in which living things don't depend upon any other body for their food. They prepare their food by themselves. They prepare their food by themselves. By themselves. यानी प्रोड्यूसर्स ऐसे लिविंग बॉडीज होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि अपने फूड जो है खुद ही प्रिपेयर करते हैं. उनको अपनी फूड प्रिपेयर करने के लिए किसी दूसरे की जरूरत नहीं होती. Their best example is the plants. All the plants prepare their food by themselves by the process of photosynthesis. Photosynthesis. Photosynthesis is the process through which the plants make their own food with the help of sunlight, water and air. यानी photosynthesis वो प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स अपनी फूड सनलाइट, एयर और वाटर की हेल्प से अपनी फूड जो है वो खुद ही प्रिपेयर करते हैं. We will discuss about photosynthesis in detail later on. Now, few examples of producers are like trees, all the plants, herbs and shrubs. Now let's move towards the second group, that is consumer. Consumers are those living things which derive their nutrition from others. यानी कंज्यूमर्स वो लिविंग थिंग्स होते हैं जो अपनी न्यूट्रिशन, अपनी ग़िज़ा, अपनी फूड दूसरों से लेते हैं. दे टेक देयर फूड फ्रॉम अदर्स. दूसरों की बॉडी से लेते हैं. लाइक वो अपनी फूड प्लांट से ले सकते हैं. फूड की 2 मेन सोर्सेस है, प्लांट से ले सकते हैं या वो अपनी फूड मीट से ले सकते हैं. There are 3 types of consumers. The first type is herbivore. Second type is herbivore. Second type is carnivore. Third type is omnivore. Okay, now what are the herbivores? Herbivores are those animals which eat only plants
like vegetables, like fruits, like flowers, those animals which eat only plants. For example, seeds, vegetable, grass, flowers, fruits. These all are the examples of plants. So herbivores only eat the plants. The examples are elephant, deer, squirrel, sheep, goat, cow, all are the herbivores. Carnivores are those animals which depend upon the flesh for their food. They only take the meat. They take the meat or flesh. You can say flesh. ये अपने फूड के लिए सिर्फ मीट पे डिपेंड करते हैं, यानी दूसरे एनिमल्स का मीट खाते हैं, जो सिर्फ यही इनकी फूड होती है. लाइक लॉयन सिर्फ दूसरे एनिमल्स को हंट करके उनका मीट खाता है. आपने कभी लॉयन को ग्रास खाते हुए नहीं देखा होगा, क्योंकि लॉयन की जो फूड है वो ग्रास नहीं है, वो ग्रास नहीं खा सकता, वो उसको सिर्फ मीट चाहिए. तो वो अपनी फूड में सिर्फ मीट लेता है, वो दूसरे एनिमल्स का हंट करके उनका मीट खाता है. Other more examples of carnivores is the wolf, falcon, and the spider. Spider is also the carnivore. So carnivores: tiger, lion, falcon, spider. All these are the carnivores. Omnivore are those living things which depend upon the plants as well as meat for their food. यानी जो आपके पास ओमनिवोर्स हैं वो अपनी फूड के लिए प्लांट्स और मीट दोनों पे डिपेंड करते हैं, वो दोनों खा सकते हैं. ओमनिवोर्स का सर्वाइवल चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं, ज्यादा बेटर होते हैं हर्बिवोर्स और कार्निवोर्स से, क्योंकि उनके पास दो चॉइसेस हैं, या तो वो प्लांट्स भी ले सकते हैं और मीट भी ले सकते हैं. सपोज किसी टाइम अगर मीट अवेलेबल नहीं है तो ओमनिवोर्स जो है वो सिर्फ प्लांट्स पे यानी वेजिटेबल्स पे, फ्रूट्स पे खाकर अपना गुजारा कर सकते हैं. इसी तरह से अगर किसी रीजन से प्लांट्स अवेलेबल नहीं है तो ओमनिवोर्स जो है वो सिर्फ मीट खाकर फॉर द टाइम बीइंग वो गुजारा कर सकते हैं. तो इस तरह से उनके सर्वाइवल चांसेस बढ़ जाते हैं, जबकि ये फैसिलिटी हर्बिवोर्स और कार्निवोर्स के पास नहीं है. हर्बिवोर्स सिर्फ प्लांट्स ही खा सकते हैं, इसके अलावा वो मीट नहीं खा सकते. कार्निवोर्स सिर्फ मीट ही खा सकते हैं, वो प्लांट्स नहीं खा सकते. जबकि ओमनिवोर्स के पास दो चॉइसेस हैं कि वो दोनों खा सकते हैं, या दोनों में से कोई एक भी खा के अपना गुजारा कर सकते हैं. सो दिस ऑल वर अबाउट द कंज्यूमर्स. नाउ आफ्टर कंज्यूमर्स वी विल मूव टुवर्ड्स decomposers or saprophytes. This is the third group, decomposers or saprophyte. Their second name is saprophyte. Decomposers or saprophytes eat decaying matter. They work over the dead plants and animals, and in the process they break them down and decompose them. When that happens, they release nutrients and mineral salts back into the soil, which are then used by plants. यानी जो डिकम्पोजर्स होते हैं वो जो है डेड एनिमल्स और डेड प्लांट्स की बॉडी पे काम करते हैं और इनकी बॉडी को बिल्कुल डिकम्पोज कर देते हैं. यानी इनकी बॉडी को के सेल्स को उनकी बॉडी के ऊपर काम करके इनकी बॉडी को बिल्कुल खत्म कर देते हैं, और उनकी बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं लाइक फास्फोरस है, सल्फर है, इन सब चीजों को वो सॉइल में शामिल कर देते हैं. और जब सॉइल में शामिल हो जाते हैं तो सॉइल जो है वो फर्टाइल हो जाती है, जिसकी वजह से वहां पे जो भी चीज आप ग्रो करना चाहेंगे तो वो चीज बहुत जल्दी अच्छे से ग्रो कर जाती है. सो दैट इज द वर्क ऑफ डिकम्पोजर्स. देयर एग्जांपल्स आर बैक्टीरिया, fungi. Now, what are the bacteria and fungi? Bacteria are those living organisms which are very very small and we cannot see them by naked eye. इन बैक्टीरिया ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि बहुत छोटे होते हैं और हमें naked eye से हमें अपनी आंख से हमें नहीं देख सकते.
वी नीड द हाई पावर माइक्रोस्कोप टू सी दैम। हमें बहुत बड़ी पावर की माइक्रोस्कोप चाहिए उनको देखने के लिए, तो उससे हम उनको थोड़ा सा चेक कर सकते हैं। अदरवाइज बैक्टीरिया को हम नहीं देख सकते। लेकिन बहुत लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। बैक्टीरिया दो तरह के होते हैं, यूजफुल भी होते हैं और हार्मफुल भी होते हैं। जो बैक्टीरिया सॉइल को हमारे लिए फर्टाइल बना रहे हैं, सरफेस बना रहे हैं, वो बैक्टीरिया यकीनन हमारे लिए यूजफुल है। तो इस तरह से बैक्टीरिया एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सॉइल को फर्टाइल करने में, सॉइल को सरफेस बनाने में, वहाँ पे जो है प्लांट्स को ग्रो करवाने में बैक्टीरिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जो कि डिकम्पोजर्स हैं। Now move towards the next group, that is parasite. Fourth group, parasite. Parasites are those living animals or plants which live on or inside other plants or animals in order to get food. They are known as parasites. They live on the body of other plants. They live on the body of other plants or other animals. I give you the example of parasite. I think you all have observed that the example is lice. Lice in the head, in the hair. यानी lice जो है, जो head में होती हैं, वो वहाँ पे रहती हैं, head में रहती हैं, hairs में रहती हैं और वहाँ से ब्लड सक करते हैं। ठीक है, लाइक ह्यूमन बॉडी में हो सकती हैं, किसी के हेड में हो सकती हैं, और वहाँ पर रह के वहाँ से ब्लड सक करती हैं और अपने आप ग्रोथ करती हैं और वहाँ पे अपने आप ब्लड को लाइक अपनी फूड यूज करती हैं, अपनी ग्रोथ करती हैं। ठीक है, इसी तरह से लाइस हैं। राउंडवॉर्म इज द पैरासाइट। जो पेट के कीड़े होते हैं वो भी पैरासाइट हैं। डियर टिक इज द पैरासाइट। So these all are the examples of parasites. Now, dear students, come towards the page number 5. Here is the exercise, an easy exercise that is written here. Now you know. In this exercise, leave the question answer. We will do the question answer in the exercise column. But look at the fill in the blanks. Fill in the blanks A, B, C, D. Fill in the blanks are given here. Try to solve them. They all are belong to this part which we have studied in lecture number 1 and 2. If you feel easy, then try to do it. Otherwise, I will help you. I will guide you. Then look at the question number 5. Question number 4 करने की कोशिश करिएगा students बुक में। अगर आप कर सकें, you can take the help of elders. Elders की help ले सकते हैं, parents की help ले सकते हैं आप, और इसको करने की कोशिश करें अगर आप कर सकें। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो in the next lecture I will guide you. इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 है, ग्रुप दिस अकॉर्डिंग टू देयर सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन। यानी जो ये कुछ लिविंग थिंग्स के नेम दिए हुए हैं, लिविंग थिंग्स के नेम दिए हुए हैं लाइक मशरूम, क्रो, शीप, डियर टिक, डियर, वुल्फ, स्पाइडर। इनको आपने लिंक करना है ग्रुप से, जो ग्रुप्स अभी हम पढ़ चुके हैं, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, हर्बीवोर, कार्निवोर एंड ओमनिवोर, डिकम्पोजर्स और सैप्रोफाइट एंड पैरासाइट। इन ग्रुप में से किसी से लिंक करना है जो नेम गिवन है यहाँ पर। तो बहुत इजी से टास्क है, यू कैन डू इट। आई होप यू विल डू इट। तो इसे ज़रूर कोशिश करिए करने की। अच्छा, द मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट बैक्टीरिया इज गिवन इन द ग्रीन बॉक्स एट द पेज नंबर 4। देखिए पेज नंबर 4 पे देखिए आप, एक ग्रीन बॉक्स बना हुआ है, वहाँ पे बैक्टीरिया के बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी हुई है, जो मैं आपको बता चुकी हूँ बहुत सारे पॉइंट्स। तो आप यहाँ से भी थोड़ा सा फॉर इंटरेस्ट स्टडी कर सकते हो। Next is that come towards the page number 12, students. Page number 12, D part. Answer the following questions in one sentence. So here the questions are given here, students. Number 1 question is that in what way is carnivore different from a parasite? यानी आपके पास जो है कार्निवोर किस तरह से पैरासाइट से डिफरेंट है। What kind of टीथ डू हर्बीवोर्स है? हर्बीवोर्स के टीथ कैसे होते हैं?
I'm giving you only 2 small questions, short questions. The answer will be one line or 2 line. Try to do it. आप कोशिश करिएगा इसका आंसर रफ पे पेंसिल से करके रखें. सिर्फ 2 क्वेश्चंस दिए हैं मैंने आपको, इसे कोशिश करिएगा. अगर आप कर सकें तो ठीक है, अदरवाइज इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल गाइड यू. अच्छा, कॉपीज के लिए आपके पास अभी फिलहाल जो कॉपीज अवेलेबल हैं, जो अच्छी कॉपीज हैं, नीट फॉर्म में हैं, वो कॉपीज आप यूज कर सकते हैं. फिर जब आपको बुक स्टॉल से मिलेंगी फिर आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं. तो अभी के लिए ये होमवर्क है. तो प्लीज ट्राई टू डू इट, शो इंटरेस्ट इन द लेक्चर, एंड इफ यू फील एनी प्रॉब्लम देन यू कैन टेक द हेल्प विद द बुक एंड बाय योर एल्डर्स. तो आई थिंक इंटरेस्टिंग है, इजी है बहुत, कोई ऐसी चीज़ मुश्किल नहीं है. फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे नेक्स्ट लेक्चर में आई विल गाइड यू. यू कैन आस्क द क्वेरीज. ओके, टेक केयर, थैंक यू, अल्लाह हाफिज. ओके डियर स्टूडेंट्स, फॉर योर इंटरेस्ट आई हैव एडेड फ्यू पिक्चर्स. देखिए, प्लांट्स हैं, बहुत ब्यूटीफुल ग्रीन प्लांट्स हैं जो कि प्रोड्यूसर्स हैं. अभी हमने प्रोड्यूसर्स के बारे में पढ़ा था, तो ये सारे प्रोड्यूसर्स हैं. ट्रीज़ हैं, देखिए कितने ब्यूटीफुल ग्रीन ट्रीज़ हैं. ये सब प्रोड्यूसर्स की एग्जांपल्स हैं. नाउ हर्बीवोर, एलिफेंट इज़ द बिग हर्बीवोर. ठीक है, आप देख सकते हैं ये हर्बीवोर है. और ज़ेब्रा आपने देखा होगा जू वगैरह में, ये हर्बीवोर है, इट इज़ द हर्बीवोर. रैबिट इज़ द हर्बीवोर, बहुत क्यूट सा एनिमल है, तो ये हर्बीवोर है. नाउ इट इज़ द कार्निवोर. लॉयन, ठीक है, किंग ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल, सो इट इज़ द लॉयन. और ये देखिए मीट खा रहा है, ये कार्निवोर है. ठीक है, टाइगर भी कार्निवोर है, आप जानते हो. ठीक है, इट इज़ द कार्निवोर. एंड वुल्फ इज़ द कार्निवोर. ठीक है, अब देखिए ये कार्निवोर है. इसके बाद है आपके पास फैल्कन इज बर्ड इज़ द कार्निवोर, यू कैन सी इट. देन स्पाइडर इज ऑल्सो द कार्निवोर. ठीक है, देन बियर इज द ओमनिवोर, यू नो. ठीक है, इट कैन ईट द वेजिटेबल एज वेल एज मीट. ये फिश खाता है शौक से. देन जो है आपके पास ये है आपके पास रैकून के बाद ये क्रो. दीज ऑल आर द ओमनिवोर्स. ठीक है ना, देखिए क्रो है ये जो हम देखते रहते हैं. ठीक है, दैट इज द ओमनिवोर. नाउ दैट इज द बैक्टीरिया. ठीक है, वी हैव स्टडीड अबाउट डिकम्पोजर्स, तो बैक्टीरिया के एग्जाम्पल हैं. और ये देखें, ये है पैरासाइट, जो लाइस होती हैं, जो हेड में लाइस होती हैं. देखिए लाइस हैं, आपने देखी हूँ. ठीक है, ये लाइस हैं, तो ये पैरासाइट्स हैं. ये राउंडवॉर्म है, राउंडवॉर्म भी पैरासाइट की एग्जाम्पल्स हैं. और साथ में देखिए ये बहुत सारे राउंडवॉर्म हैं. दीज ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ पैरासाइट. इट इज़ द डियर टिक. ठीक है, डियर टिक देखें प्लांट्स पे जो है अपने रहने की जगह बना लेता है, तो वहाँ से अपनी फूड गेन करता है. दैट इज़ द डियर टिक. तो ये सब एग्जाम्पल्स हैं.